Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 1st November 2021 and I am teaching you chapter number 14. Name of the chapter, means of transport. So, name of the chapter is means of transport. So, student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, in the previous video, student, we discussed that when we are talking about the different means of transport. So, first of all, understand what is the means of transport. So, we use different types of a vehicle to travel. Okay, what is means of transport? We use different types of vehicles. We use different types of vehicles to travel. So we use different types of vehicles to travel. So this is known as means of transport. Is it clear? This is known as mean of transport. So we use different types of vehicles to travel, and this is known as a means of transport. Now the next step is that, student, when we are talking about the means of a transport, then mean of transport is divided into three parts: land transport, air transport, and water transport. Okay, so when we are talking about the different means of a transport, then it is further divided into three parts, that is land transport, air transport and water transport. Is it clear? Water transport. Now the transport which is सबसे ज़्यादा the transport जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, that is land transport. Okay, or when we are talking about the land transport, again it is divided into two parts, that is roadways and second one is known as railways. That is roadways and railways. Okay, so land transport, when we are talking about means of transport, then it is divided into three parts, that is land transport, air transport, water transport. And when we are talking about land transport, again it is further divided into two parts, that is roadways and railways. Roadways means the vehicles which move on the road, like bus, car, auto rickshaw, cycle, motorcycle, bike, scooty. So these are all the vehicles which run on the road. So we say it as a roadways. And when we are talking about the railways, means which vehicle travel
in the railways that the vehicle which move on the tracks, ठीक है, the vehicles which move on the track and that is known as a train, that is known as train, or you can also say metro train also, ठीक है. So vehicles which are moving on the tracks that is known as railways, उसे क्या बोलते हैं, रेलवेज बोलते हैं, ठीक है. जो व्हीकल्स ट्रैक्स में मूव करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आए, रेलवेज में, ठीक है. इसमें आपकी ट्रेन्स भी आएंगी, पैसेंजर ट्रेन है, गुड ट्रेन्स है, मेट्रो ट्रेन्स है, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे व्हीकल्स, ओके. एंड देखो तीनों बेटा मैंने लिख दिया है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर, और विच इज द बिजिएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा यूज जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है बेटा दैट इज योर लैंड ट्रांसपोर्ट. सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपका है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपका है वो आपका कौन सा है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है. मोस्टली यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रेन से वी कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हमें कहीं दूर कहीं फार अवे प्लेसेस में जाना होता है तब हम लोग ट्रेन पे जाते हैं, ठीक है. अब आपको मार्केट सामान लेने जाना है, अपने नेबरहुड प्लेसेस में विजिट करना है, अपने स्कूल जाना है, तो फॉर ऑल दिस वी प्रिफर रोडवेज, ठीक है. इस सब के लिए हम लोग रोडवेज प्रेफर करते हैं, ठीक है. और जो बहुत ज़्यादा फार अवे प्लेसेस होती है तो वहाँ पे हम लोग रेलवेज प्रेफर करते हैं, ट्रेन से जाते हैं, या तो वहाँ आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट भी प्रेफर करते हो, ठीक है. एयर ट्रांसपोर्ट भी प्रेफर करते हो. अब देखो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया. तो सबसे पहले द बिजिएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी है, वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. फिर उसके बाद अब हम लोग इसी ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं विच इज द चीपेस्ट, CHEATEST, चीपेस्ट. चीपेस्ट मतलब जो सबसे सस्ता, जो सबसे सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपका है बेटा ये वाटर ट्रांसपोर्ट है. सबसे चीपेस्ट आपका कौन सा है, वाटर. क्योंकि देखो लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बहुत ज्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है फॉर मेकिंग द रोड्स, ब्रिजेस. आप लोग देखते हो जिन प्लेसेस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है तो वहाँ फ्लाईओवर्स भी बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, ठीक है. फ्लाईओवर्स बनते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ फ्लाईओवर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है. तो इसके में बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होती है फॉर मेकिंग द रोड्स एंड फ्लाईओवर्स. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट आल्सो, देन इट आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि एयरपोर्ट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड होती है, ठीक है. और सबसे चीपेस्ट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वाटर में चलने वाली जितनी भी चीजें हैं इसके लिए हमें वाटर खरीदने नहीं जाना पड़ता, ठीक है. दिस वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, सी, ओशंस, ये सब वाटर बॉडीज में आते हैं. और सबसे ज्यादा हमारे प्लेनेट में, मैंने आप लोग को ऑलरेडी वाटर अ वंडरफुल लिक्विड चैप्टर में बताया था कि वाटर क्या है, 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद अ वाटर. सो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट है, क्योंकि इसके लिए हमें रोडवेज की तरह रोड नहीं बनाने पड़ते, फ्लाईओवर नहीं बनाने पड़ते, रेलवेज की तरह ट्रैक्स नहीं बनानी पड़ती, मेट्रो ट्रेन के लिए भी ट्रैक बनती है. एयर ट्रांसपोर्ट है तो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो यहाँ बहुत सी मनी स्पेंड होती है. लेकिन हमें वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर नहीं खरीदना पड़ता. इट इज ए नेचुरल रिसोर्स विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन आवर प्लेनेट अर्थ एंड 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद अ वाटर. सो दैट इज द रीजन दिस इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. और फिर यहीं पे एक देखो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाए, एक विच इज द बिजिएस्ट मीन ऑफ, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है, लैंड ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा ये यूज होता है. विच इज द चीपेस्ट हो गया, वो हो गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है. अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बन गया, विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वाराणसी से आप दिल्ली जाते हो तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत, वो आपको लगभग 8 आवर्स में पहुंचा देती है दिल्ली. लेकिन आप एरोप्लेन से जाओगे तो विद इन 45 मिनट्स और 1 आवर में यू विल रिच दिल्ली. तो अब आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन हो गया बेटा, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया. क्या हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया.
अब ये तीनों ट्रांसपोर्ट बोर्ड पे लिखे हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट भी लिखा है, एयर ट्रांसपोर्ट भी लिखा है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी लिखा है, ठीक है। इससे प्रीवियस चैप्टर में स्टोरी ऑफ व्हील में मैंने आपको बताया था कि द डिस्कवरी ऑफ द व्हील हैज चेंज द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया था। तो पहले डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई थी, सबसे पहली व्हील वुड से बनी थी, लॉग ऑफ वुड को कट करके बनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर रबड़ की व्हील्स भी बनने लगी। तो अब ये जो सबसे इसमें अब ये क्वेश्चन इसमें से तीनों पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, विच इज द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या बनता है? ओल्डेस्ट, ठीक है, विच इज द ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बेटा वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे ओल्डेस्ट कौन है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। और सबसे चीपेस्ट कौन है? वाटर ट्रांसपोर्ट है। और जितनी भी कंट्रीज की डिस्कवरीज हुई है, खोज हुई है, वो भी ड्यू टू विच ट्रांसपोर्ट? ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट के वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट से, शिप से ही दूसरे दूसरे कंट्रीज के लोग आए थे, वो चलते गए और जहां पे लैंड का टुकड़ा आया तो वहां उन्होंने देखा कि लैंड, देखो जैसे अर्थ का, जब आप लोग अर्थ का ग्लोब देखते हो, अर्थ का मॉडल क्या है? ग्लोब है, तो उसमें मैक्सिमम आपको ब्लू दिखता है। तो ब्लू क्या है? वो पूरा वाटर है। और जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड है, लैंड, ये 7 बड़े टुकड़े हैं। आप लोग 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ोगे अभी 5th क्लास में। तो जो ह्यूज मासेस ऑफ लैंड है, तो ये जमीन के टुकड़े हैं जो सातों के साथ एक संग जुड़े नहीं हैं। इनके बीच में क्या है? वाटर है। इज इट क्लियर? इनके बीच में वाटर है। तो वाटर के रास्ते से ही बहुत से देशों की क्या हुई थी? खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। एंड दिस इज पॉसिबल टू डू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब बुक से चलते हैं। अब देखो, अब दे हेल्प पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो हम लोग पहले ट्रांसपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द फैसिलिटीज और व्हाट आर द बेनिफिट और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, इनके क्या एडवांटेज हैं इन आवर लाइफ। चाहे इस समय हम लोग कॉमन बात कर रहे हैं, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो या एयर ट्रांसपोर्ट हो या मीन ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? सो दे हेल्प पीपल एंड गुड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे हेल्प people and goods. They help people and goods to move from one place to another, ठीक है। ये एडवांटेज है। दे हेल्प पीपल, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये पैसेंजर ही कैरी करते हैं, ये हमारे गुड्स को भी कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो फार अवे प्लेसेस, और कहीं जाते हैं तो हम अपने संग कुछ लगेज वगैज भी लेके जाते हैं। तो ये जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं डिफरेंट बेटा, ये हमारे ये पीपल को कैरी करने का काम तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारा सामान होता है, जो लगेज होता है हमारे संग, उसको भी कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। अनदर क्या है? दे सेव आवर टाइम। अगर इतने दुनिया हम लोग नाउ वी कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ये हमारा टाइम भी सेव कर रहे हैं और इनमें फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन दीज टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। अब सो सेकंड क्या है? सेविंग टाइम। इन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा क्या सेव होने लगा? टाइम सेव होने लगा, ठीक है।
make our life easier and comfortable. मेक आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। तो ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनकी क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस क्या है? दे हेल्प पीपल एंड गुड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज द एडवांटेज, सेविंग टाइम, दे आर सेविंग आवर टाइम। नेक्स्ट इज मेक आवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल। ठीक है, सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब डिसएडवांटेज इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, फर्दर चैप्टर आएंगे जिसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये सब की बात होगी, तो वहां हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे। ठीक है, अभी इस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमने क्या डिस्कस कर लिया? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट? दैट इज दे हेल्प people and goods to move from one place to another, saving our time, and third one is make our life easier and comfortable. Make our life easier and comfortable. Now the next important point which I will explain you in this chapter is that selection of vehicles to move. Next point which we will discuss under this topic is selection of vehicles to move. अब हमें we have to move from one place to another. Now which type of a vehicles we will select? ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में पहले भी आपसे डिस्कस किया है। ठीक है, सो शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम होम, short distance okay, short distance means short distance from home we use, हम क्या क्या व्हीकल यूज करते सकते हैं? साइकिल भी यूज कर सकते हैं, स्कूटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो द व्हीकल विच वी आर यूजिंग है साइकिल, स्कूटर और कार। सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? साइकिल यूज कर सकते हैं, स्कूटर यूज कर सकते हैं, कार यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड इफ द प्लेस इज फार अवे, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, अब फार अवे प्लेसेस। ओके, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है द फार अवे प्लेस, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ट्रेन और एरोप्लेन। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग साइकिल, स्कूटर, कार ये सब यूज करते हैं। और फार अवे प्लेसेस अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, सो विच टाइप ऑफ द व्हीकल वी विल यूज? दैट इज द ट्रेन और एरोप्लेन। ठीक है, दैट इज द ट्रेन और एरोप्लेन। And now the most important thing, next important thing we will discuss here is that the vehicle we use depends on how far we have to go. ठीक है, तो अब selection of vehicles to move, अब इस दो पॉइंट से हमें क्या पता चलता है बेटा कि हम जो भी vehicles चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, it depends upon how much distance we have to cover. And the most important thing is money we can spend. Most important thing, money we can spend. वहीकल्स की तो बात हमने कर ही ली। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग फार अवे प्लेसेस और वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस के लिए जो हम लोग व्हीकल चूज कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग डिस्कस किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मनी वी कैन, हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड। ओके, हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड। ठीक है, अगर मैंने जैसे भी एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको वाराणसी से दिल्ली जाना है तो ट्रेन से आपका 1000-2000 लगेगा। ठीक है,
और यही अगर आप एरोप्लेन से जाओगे इट विल सेव योर टाइम, बट यू हैव टू स्पेंड मोर मनी। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये भी डिपेंड करता है कि हाउ मच मनी वी कैन स्पेंड। थैंक यू स्टूडेंट।